Now we are taking new chapter, magnetic classification of substances. Magnetic classification of substances. So here write down, on the basis of magnetic behavior, substances can be classified as first one, diamagnetic substance. Second, paramagnetic substance. And third, ferromagnetic substance. Diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances. So if you classify the substance on the basis of their magnetic behavior, then they will be divided into three groups: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Now one question generally comes from this chapter, that write differences between dia, para and ferromagnetic substance. बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरो. और समटाइम्स कुछ पर्टिकुलर पॉइंट दे के वो पूछेगा कि इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करो. सो 3 कॉलम बना लो. पहले हेडिंग डाल दो, डिफरेंस बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. डिफरेंस बिटवीन diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substance. तीन कॉलम बनेंगे. पहला डाया, देन पैरा एंड फेरो. डाया, पैरा एंड फेरो. डाया में राइट डाउन, these substances when placed in magnetic field comma are feebly magnetized opposite to direction of magnetizing field. Feebly magnetized opposite to the direction of magnetizing field. पैरामैग्नेटिक में राइट डाउन, these substances
when placed in magnetic field, comma, are feebly magnetized in the direction of magnetizing field. एंड फेरोमैग्नेटिक में these substances when placed in a magnetic field are strongly magnetized in the direction of magnetizing field. So first point of difference ये है कि if diamagnetic substance placed in magnetic field तो वो lightly magnetize होगा, but that magnetization will be opposite to the field. पैरा में lightly magnetization होगा, but that will be in the direction of field. और ferromagnetic में the substance will be strongly magnetized in the direction of field. Second point, dia में these substances are feebly repelled by the magnets. पैरामैग्नेटिक में these substances are feebly attracted by the magnet. And ferromagnetic में these substances are strongly attracted by the magnet. तो डायामैग्नेटिक जो है वो फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड फेरोमैग्नेटिक इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. देन ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो याद होना ही होना है तुम्हें. डाया में relative permeability that is mu r is slightly less than 1. Mu r slightly less than 1. जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की दैट विल बी स्लाइटली लेस देन 1. पैरामैग्नेटिक में रिलेटिव परमिएबिलिटी
slightly greater than 1, and ferromagnetic में relative permeability is much greater than 1. Relative permeability is much greater than 1. So if question says that differentiate between dia, para and ferro on the basis of relative permeability, then these points will be there. That means for dia, mu r slightly less than 1, para mu r is greater than 1 slightly, and ferro mu r much greater than 1. And if he says that write difference between dia, para and ferro, one difference between dia, para and ferro, then you can write any of these 3 points. तब कोई भी लिख सकते हो, लेकिन if he is mentioning that you have to differentiate on the basis of relative permeability, तो फिर यही point आएगा third point, fourth difference. The magnetic susceptibility this will be denoted by this sign. Magnetic susceptibility, ये जो susceptibility होता है, this is the term how easily the substance can be magnetized. कितना इजीली सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकते हो, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द ससेप्टिबिलिटी. और ये ससेप्टिबिलिटी जो है दैट इज रिलेटेड विद रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू आर -1. ये रिलेशन होता है ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच में. तो on the basis of magnetic susceptibility now we will differentiate. डायामैग्नेटिक में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अब देखो डाया का म्यू आर 1 से कम है, ये 1 से कम है, तो वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी, और स्लाइटली लेस देन 1 है तो स्मॉल वैल्यू होगी. तो डाया में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल. जैसे ही किसी सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी को नेगेटिव बोले वो मतलब सब्सटेंस जो है वो डायामैग्नेटिक होगा. तो डाया की ससेप्टिबिलिटी जो है दैट विल बी नेगेटिव एंड स्मॉल. पैरा में लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल. क्योंकि पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव एंड स्मॉल, पैरामैग्नेटिक में म्यू आर की वैल्यू 1 से स्लाइटली ज्यादा है, तो ये 1 से ज्यादा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और स्मॉल होगी. पॉजिटिव एंड स्मॉल. एंड फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज. पॉजिटिव एंड लार्ज क्योंकि उसका जो म्यू आर है मच ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और लार्ज भी आएगी.
मतलब 100 के ऊपर वैल्यू होगी, 100, 105, 500, 600, ये सब फेरोमैग्नेटिक के लिए होगा। 3, 5, 7, 9 ये सब पैरामैग्नेटिक के लिए, और माइनस में वैल्यू जो आएगी दैट विल बी फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। एक नंबर में पूछेगा तो केवल या तो रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म में या रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी के टर्म में, 2 नंबर में दोनों के टर्म में पूछ लेगा, या 2 डिफरेंस अगर लिखने को कहे तब भी ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनी डाउट, एनीबडी? किसी को कोई डाउट? यस, नो? हाँ बोलो। सर ससेप्टिबिलिटी आपने अभी क्या बताया था? इट इज द ईज ऑफ हाउ इजीली द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना कितना इजी है। जितनी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी उतना इजीली सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा, राइट? देन राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ डाया। डाया वाले कॉलम में एग्जाम्पल्स लिखो। बिस्मथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, वाटर, मरकरी, सोडियम क्लोराइड लिक्विड में आ गया ये, अब वाटर भी लिक्विड था, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, पैरामैग्नेटिक में एल्युमिनियम, सोडियम, प्लैटिनम, एंटीमनी, So please repeat after platinum. एंटीमनी, कॉपर क्लोराइड, and solutions of salts of iron and nickel, और फेरोमैग्नेटिक में आयरन, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। So this is the topic regarding the difference between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Then next heading, important terms used in magnetism.
जो इम्पोर्टेंट टर्म मैग्नेटिज्म में यूज होंगे उनको यहां पे डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन जो कि B से डिनोट होगा, दैट सेम थिंग विच यू हैव रेड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वही चीज है ये। अनदर नेम इज मैग्नेटिक इंडक्शन। The magnetic lines of forces, the number of magnetic lines of induction inside a magnetized substance crossing unit area normal to their direction is called magnetic induction or magnetic flux density। SI unit is Tesla और वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एंड CGS यूनिट इज गॉस। CGS यूनिट इज गॉस and 1 gauss is equal to 10⁻⁻⁴ Tesla। Now what is this